नमस्कार सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल में एक बार फिर डॉक्टर स्पीक लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें कोविड-19 से जुड़े कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो उसका समाधान आप पा सकते हैं, कोई भी शंका आपके मन में हो उसका समाधान डॉक्टर डायरेक्ट इस कार्यक्रम में करते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा रहेगा। आपको सिर्फ जो दिए गए फ़ोन नंबर हैं उन पर फ़ोन करना है और सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ रहेंगी इस शो में मेरी सहयोगी मुनमुन। Yes, Ramas, good afternoon to all of you. This is Dr. Speak, live call-in show where you can call us on the numbers that will be flashing on your screens. Your questions on COVID-19 will be answered by a panel of experts. You can also log on to DD News's Facebook page and send your queries to the live link of Dr. Speak that you'll be able to see there. So let's introduce the guests who are joining us. Dr. Sanjay K. Rao is Professor Community Medicine and Principal Investigator COVID-19 Vaccine Trial. Dr. Prasoon Chatterjee is Additional Professor Department of Geriatric Medicine with AIIMS. I welcome you both to Dr. Speak. I'll come to you, Dr. Rai. There is a lot of hope with regard to an indigenously developed vaccine in India for COVID-19. We are aware that the SEC, which is the subject expert committee which is considering this matter before the DCGI takes a final call on it, has been meeting. It met today as well. What are the processes that are followed and how is the science not compromised at all in this process? If you can educate our viewers on this. Okay, fine. See, there are many issues in any vaccine trial, like preclinical trial and clinical trial. Preclinical is already over, and even the clinical trials, there are various stages like phase 1, phase 2, phase 3, and then post-marketing, or we also call phase 4 trial. In phase 1 trial, we usually see this safety profile, that particular drug or vaccine or any medicine. That is already over, and if you are talking about this, our COVID-19 vaccine against COVID-19 indigenously developed vaccine that was developed with ICMR isolated this virus, and then they developed in collaboration with Bharat Biotech. So this vaccine is a completely indigenous vaccine, and it's a whole virion inactivated vaccine. We also call whole virion killed vaccine. That means we are using same virus, a killed virus, to inoculate, and then the immunity will be developed with this virus, against this virus. There are other various platforms, like few are using messenger RNA platform, few are using vector, like adenovirus vector, like AstraZeneca, and this your Oxford. Serum Institute is collaborating with them, and that platform they are using. So there are various type of platform they are using for this. So under this trial, like then the second phase is about your immunogenicity, reactogenicity, and also safety. Safety will be the part of each and every step, even in the phase 4 trial. But the main objective changes after each phases. So phase 3 trial, which is currently going on for both this AstraZeneca vaccine, which Serum Institute is preparing in India, and also your this one Covaxin, which is developed by Bharat Biotech. So in the last phase of clinical trial, the third phase is mainly for your to see the effectiveness of the vaccine. We have not finished yet the phase 3 trial, although the recruitment is over in Oxford University trial in India. They have already disclosed their effectiveness based on data from Brazil and also from the UK. Yes. That it's around 62%. But in our indigenous vaccine, phase 1, phase 2 data is in the public domain. So overall, neutralizing antibodies, this is a very safe vaccine. Almost even the mild symptoms are very less, around 10% only, and we found none in this severe reaction. Right. Yes. So it's a very safe vaccine, our indigenous, but effectiveness data is still not available. So we can't comment on overall effectiveness. But based on phase 2 data, I can say that this neutralizing antibody presence was more than 80%. In 80% subjects.
The second strength of this trial is Yes. large sample size. Yes. Like in phase 1, the total sample size was 375, whereas in many other trials, the sample size was less than 50. Almost in few trials, in phase 1, it was less than 20 even. So exhaustive processes, Dr. Rai, have been followed. You are telling us that phase 3 trials of Covaxin, which has been indigenously developed by Bharat Biotech as well as ICMR together, are currently on, and we don't know much about the efficaciousness data or the data with regard to efficacy. We'll wait for that, and the SEC's call will also be known in a few days perhaps. बिल्कुल, डॉक्टर प्रसून भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर प्रसून, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर और इनके आपातकालीन इमरजेंसी उपयोग को लेकर, तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि जो इमरजेंसी उपयोग है या जो इनका आपातकालीन उपयोग है वो कैसे तय किया जाएगा और किस तरह से ये डिसाइड किया जाएगा कि किस केस में ये जो है इसको उपयोग किया जाए? देखिए, इसमें गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग क्लियर मैंडेट फॉर दैट, एंड ऑलरेडी दिस हैज बीन डिस्कस्ड। इसके बारे में चर्चा भी हुआ है। जैसे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर को पहले हमें सेफगार्ड करना ही है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द पेशेंट। एंड जैसे कि हमारे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत सही तरीके से कहा कि सारे कुछ सेफगार्ड करके ही बनाया जा रहा है। लोगों में एक वैक्सीन रिलैक्टेंसी कुछ स्टडी में आ रहा है, विच इज नॉट एक्चुअली गुड। तो इसमें ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, इसमें कुछ भी बाईपास करके नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी यूज करने का तरीका बात इसलिए है क्योंकि दिस इज अ मेजर पैंडेमिक व्हिच हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड ग्लोबली। उसमें क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए भी जैसे यूएस में ने भी एफडीए ने भी इमरजेंसी यूज करने के लिए परमिशन दिया है। तो दिस इज क्योंकि ये पैंडेमिक है इसलिए जल्दी किया जा रहा है, बट इसके मतलब ये नहीं कि कुछ भी तरीके को शॉर्टकट किया जा रहा है, कुछ भी तरीके को बाईपास किया जा रहा है। एंड एज डॉक्टर संजय हैज राइटली मेंशन दैट इट इज अ वेरी सेफ वैक्सीन। ये कील्ड वैक्सीन है, ये ओरिजिनल वैक्सीन मतलब लाइव वैक्सीन नहीं है कि अंदर जाते हुए ये खराब रिएक्ट कर सकते हैं, बट इट विल मिमिक द एक्चुअल ओरिजिनल वायरस और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट किया जाएगा। इवन सीनियर सिटीजन के लिए भी, क्योंकि हमें जेरियाट्रिशियन, सो आई विल स्पीक फॉर सीनियर सिटीजन के लिए भी ये वैक्सीन बहुत सेफ देखा गया। बाहर जितना स्टडी हुआ है वहां पे देखा गया, और सीनियर में इसका जो बूस्टर है वो भी बहुत सेफ है। सो नथिंग टू वरी द वैक्सीन। और इसके लिए हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने भी आज जैसे मेंशन किया है कि द होल प्लान इज गोइंग ऑन, ड्राई रन प्रोसीड्योर चल रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है लोगों को ग्राउंड जीरो में, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीड्योर है। बोथ बॉटम अप एंड टॉप टू बॉटम दोनों तरफ ही आपको इसमें ख्याल रखना है। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर, विल बी टेकन केयर। सो लोगों को ये समझना जरूरी है कि दिस वैक्सीन इज वेरी सेफ, जो भी सरकार से दिया जाएगा, और इसको लेना चाहिए। इसके अगेंस्ट ना हो जब आपके लिए ये आएगा। बट हाँ, दिस विल बी अ स्टेप वाइज अप्रोच, जिसमें पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर को दिया जाना चाहिए, देन द वल्नरेबल ग्रुप लाइक एल्डरली 50+ पीपल विद मल्टी मॉर्बिडिटी, उनको दिया जाएगा। मोर ओवर बहुत सारे लोगों को सेरो कन्वर्सन भी हो रहा है साथ में, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड न्यूज। जरूरी नहीं है हमें 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है, सो दैट पार्ट ऑफ वी हैव टू टेक केयर, राइट? Dr. Sanjay, questions are being asked on our social media handles. On Facebook, Raghav Bharadwaj is asking, how much is a face shield effective in protecting from COVID-19, and also are cotton masks effective? Are they talking about this face shields that we wear, the plastic face shields, how effective they are and how effective are cotton masks? Actually, I had this impression. जहाँ तक फेस शील्ड की बात है, देयर आर फर्स्ट, इसके पहले में जानना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन 3 वे ही है। फर्स्ट ड्रॉपलेट जब हम बात कर रहे होते हैं, सो जो छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, दीज आर द ड्रॉपलेट्स आर फोमाइट। जब ये कण कहीं बैठते हैं तो कंटामिनेट करते हैं सरफेस को, उसको फोमाइट करते हैं। और थर्ड जो है एरोसॉल से होता है। एरोसॉल बहुत ही छोटे कण जो है हवा में रहते हैं, वह कर सकते हैं, बट मेजर जो इनका ट्रांसमिशन होता है थ्रू ड्रॉपलेट होता है। इसलिए फेस मास्क पहनना जरूरी है। जो फेस शील्ड है, फेस शील्ड जो है एरोसॉल की डायरेक्ट अगर किसी से बात हो रही है तो हो सकता है और उस आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, आपके इसमें आ सकता है, ड्रॉपलेट्स भी आ सकते हैं आपके आई या माउथ के पास,
वन, आप इनहेल कर सकते हैं, ये हो सकता है, या एरोसॉल अगर है जो बहुत ही छोटे कण हैं, जो नॉट थ्रू ड्रॉपलेट, वो या कुछ जो मेडिकल प्रोसीजर हम करते हैं उनमें एरोसॉल जनरेट होते हैं। जैसे किसी को हम जो ट्यूब डालते हैं श्वास नली में, तो उस समय जो है एरोसॉल बड़े छोटे छोटे कण निकलते हैं, उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वह जो है आई के थ्रू जा सकते हैं, माउथ के थ्रू जा सकते हैं। अगर फेस शील्ड हम ये कर रहे हैं तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं होगा, तो फेस शील्ड प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली कितना प्रोटेक्ट करता है इसका कोई डेटा जो है, साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है, बट प्रोटेक्ट करता है। विद फेस शील्ड एंड मास्क अगर हम पहनते हैं तो ऑलमोस्ट इट्स ए वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी, और मेजॉरिटी जो है अभी तक जो हम प्रिवेंट कर रहे हैं इन्हीं मेजर से कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रसून, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपसे बात कर रहे थे कि बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर भी आप साथ में लेते रहिए। आपका हाथ अगर कंटामिनेटेड है और उसी हाथ से आपने फेस शील्ड के अंदर हाथ लगाया, फिर बाहर हाथ लगाया, फिर आप उसको पहन रहे हो, सो आई थिंक हमें तीनों जो पब्लिक हेल्थ मेजर को बार बार डिस्कस किया जा रहा है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर हैंड ऑल्सो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस, अलोंग विद दैट यू वेयर मास्क और फेस शील्ड। बिल्कुल। डॉक्टर चैटर्जी, आप बात कर रहे थे कि वैक्सीन को लेकर जो रेलेक्टेंस है लोगों के अंदर, वो दूर किए जाने की ज़रूरत है और वो नहीं होनी चाहिए। किस तरह की कंफ्यूजन्स जनरली आपने ऑब्जर्व की हैं जब पेशेंट्स या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, या क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये जो र्यूमर्स की हम बात करते हैं, और उनको दूर करने के लिए किस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये सिर्फ पहली बार कोविड वैक्सीन को लेके हो रहा है ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत सारे वैक्सीन को लेके एक वैक्सीन रिलेक्टेंसी इज अ वेरी कॉमन फिनोमेनन, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जब कुछ होता है तो बेसिकली इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको डिस्करेज कर रहे हैं, ऐसे भी देखा जा रहा है। कुछ सर्वे हम लोग एक आईसीएमआर से भी एक स्टडी कर रहे हैं अभी, क्वालिटी स्टडी इन मल्टीपल सेंटर, तो उससे भी हम समझना चाहते हैं, बिकॉज इसमें कम्युनिटी लीडर भी बहुत रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लेमैन को बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको बोला जा रही है जल्दबाजी में वैक्सीन हो रहा है, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं पता है, किसी को एक कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आया था, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो पता नहीं चल रहा है। इवन वी आर सीइंग फेज 3 ट्रायल में रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी बहुत सारे लोग इसमें मना कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चीज है, ये दिस इज टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फोडेमिक्स कहते हैं। पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो लोगों को हम शुरू से यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सही जगह से न्यूज लीजिए, डॉक्टर से बात करिए। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आप वैक्सीन नहीं लीजिए, एवरीवन इज प्रमोटिंग दैट, बट जब हम लेमैन से बात करते हैं और एक लेमैन थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे होता है ना गूगल में एक ड्रग का 1 in million साइड इफेक्ट एक लिखा रहता है, उसको देख के पेशेंट हमारे पास आ जाता है, नहीं डॉक्टर साहब ये दवाई का तो ये साइड इफेक्ट है। तो हमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन ने ऐसा कहा है कि भाई डॉक्टर साहब अगर वैक्सीन आप अंदर दे दोगे तो क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? तो उनको हमें एज ए डॉक्टर वी शुड डिस्पेल द मिथ। कम्युनिटी लीडर को भी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए, जो कुछ हद तक हो भी रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा हमें कम्युनिटी लीडर जो भी कांटेक्ट पॉइंट होता है, जिनको जो कि बेसिकली दोज हु इंस्पायर, और स्पिरिचुअल लीडर भी इसमें बहुत सारे रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। उनको हमें ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज फैलाना चाहिए कि दिस इज अ वेरी वेरी सेफ वैक्सीन, जो कि डॉक्टर संजय सर ने भी अभी बता रहे थे कि इट इज अ वेरी वेरी सेफ वैक्सीन। डोंट लिसन टू द पीपल की जो बोल रहा है कि इस वैक्सीन को अपना लीजिए, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अदरवाइज। Dr. Rai, we are aware that a 2-day dry run was held across India on 28th and 29th for the vaccination drive. Tomorrow is the day when in all states and union territories a dry run will be carried out for the vaccination drive. According to reports, some of the key learnings from the first dry run in 4 states that was conducted in December end were that there needs to be better mapping of remote locations, there needs to be real-time reporting of adverse events, and ramping up of training needs to happen. We are aware that at least 96,000 vaccinators have been trained for the vaccination drive. There are several who participate in the universal immunization program, who would also be participating in the COVID-19 vaccination while not compromising on the other vaccinations that continue. So if these key learnings have been highlighted, is it important to address all of them going forward? Yeah, see, the main objective of this type of dry run is to identify the challenges during implementation of the policy. For this current round, the policy is already in the place. Government of India has already declared guidelines almost 20 days ago. तो policy तो है वहाँ पे, but
इसका एग्जीक्यूशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना। Initially in 4 states, and they identified all these states from the different region of country, like one from the north, Punjab, one from the south, Andhra Pradesh, then one from the east and west Gujarat and east Assam. तो 4 उन्होंने किया था कि अलग अलग कल्चर है, सो जस्ट आइडेंटिफाई करना। इन एनी ड्राई रन हम सारे प्रोसेस को करते हैं, लाइक इसके 3 मेन पहलू होते हैं, लाइक फर्स्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू पॉइंट ऑफ यूज, जहां तक जाता है सो हमें वैक्सीन पहुंचाना, सो वैक्सीन स्टोरेज करना, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आल्सो टेम्परेचर मेंटेन करना, देन टेम्परेचर के बाद जो है जहां स्टोर कर रहे हैं, जहां पे एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट होता है वहां भी टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज 2 to 8 डिग्री इन करंट राउंड। So, we have this type of facility all over India. Even at the primary health center level, we have very well structured our UIP program, Universal Immunization Program for Children. तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हम देखना। सेकेंड, ये जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज, तो उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, और दे आर यूजिंग 2 अप्रोच इसके लिए। एक तो उन्होंने एबव 50 इयर्स के लोगों के लिए यूज किया है ये लेटेस्ट योर इलेक्टोरल रोल ये है, और दूसरा जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इनकी लिस्ट बनाई हुई है एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स की, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड वन इज रियली इम्प्लीमेंटेशन, एक बार आइडेंटिफाई हुए उसमें जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है कि 5 पर्सन होंगे इस बूथ पे, तो जो ये ड्राई रन हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पज ये है कि सपोज आउट ऑफ 5 एक कोई बीमार पड़ गया, कल कोई एक्सीडेंट हो सकता है, सो क्या बी टीम हमारी तैयार है कि नहीं, सो सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, इंक्लूडिंग जो वेब बेस्ड हमारा रजिस्ट्रेशन है उसको देखना, आफ्टर वैक्सीनेशन कैसे मैनेज करेंगे योर दिस एडवर्स इवेंट। पहली बार जो एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने को कहा गया है। देन इसके बाद जो है feedback mechanism of this vaccination program. So we have feedback mechanism like chairman of district is your this district magistrate. तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसका जो है डेली उसका मॉनिटरिंग करना, डेली मीटिंग करना, फीडबैक लेना और उस फीडबैक को इंटर करना वेब बेस्ड इस पे। सो ऑल दिस, सो कल जो है पूरी कंट्री में उन्होंने प्लान किया हुआ है आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ ड्राई रन। बिल्कुल डॉक्टर राय, आपने बिल्कुल साइंटिफिक वे से बताया है कि किस तरह से एक पूरी तैयारी है इसके ड्राई रन को, जिस तरह से कोई भी चुनौती इसमें आती है या कोई भी चूक है वो ना होने पाए। डॉक्टर चैटर्जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जो तैयारी है वो पूरी की गई है, कितना सुनिश्चित इससे हुआ जा सकता है, और इसके अलावा अगर किसी आम आदमी के मन में कोई सवाल आता है तो जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, क्या उनके द्वारा या पोर्टल पर एक्सेस जो है उन लोगों का होगा, वो भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जी जरूर, जो भी ये क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ही जरूरी है ताकि उनके मन में जो संदेह है वो भी क्लियर हो जाए। और जैसे कि हमें जो ग्राउंड जीरो पे हेल्थ केयर वर्कर है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है फॉर दिस पर्पस ओनली। इट्स नॉट ओनली टू इनोकुलेट द वैक्सीन बट आल्सो द रिलेटेड क्वेरी आल्सो यू हैव टू एड्रेस। तो ये भी एक इशू है कि हेल्थ केयर वर्कर जो ग्राउंड जीरो पे है, क्योंकि अगर टर्शियरी केयर सेंटर में किसी को डाउट होता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ विलेज लेवल, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर जो है उनसे ही वो लोग विश्वास भी करते हैं और उनसे उनका जो बातचीत है वो बहुत सरल होता है, तो दे कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर। उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया गया है। Dr. Rai, one question has come in. Hemraj Singh is asking, I'm COVID-19 positive. I tested positive in an RT-PCR test on 20th December, that is 20 December, and I was home quarantined. अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तबीयत सामान्य है और साथ में मेरी वाइफ भी पॉजिटिव है। देखिए, अगर आप होम आइसोलेशन पे हैं दोनों लोग, क्वारंटीन तो उनको कहते हैं जो सस्पेक्टेड है, ये कंफर्म केस थे, अगर RT-PCR या रैपिड टेस्ट अगर इनका कंफर्म हुआ होगा, और अगर 17 डेज बीत गया है, यूजुअली जो हमारा फॉलो पीरियड है 17 डेज तक का है, या अगर 10th डे पे सिम्टम्स यूजुअली सबसाइड कर जाते हैं तो उसके बाद मिनिमम 3 डेज और, तो शायद इनका अगर ही इज एसिम्प्टोमेटिक एंड वाइफ इज आल्सो एसिम्प्टोमेटिक, सो देन ही इज फ्री। मतलब यूजुअली चांस
रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि ये ट्रांसमिट कर पाएंगे अभी। तो एक बार कोविड होने के बाद जो भी एविडेंसेस, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12 मंथ ओल्ड वायरस, तो काफी एविडेंसेस जनरेट हो गए हैं कि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद, और अभी कुछ ही दिन पहले जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है जो हेल्थ केयर वर्कर उन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो काफी अच्छी इम्यूनिटी रहती है। सो प्रोटेक्टेड है, एक तरीके से माना जा सकता है कि 6 से 7 मंथ तक उनको री इन्फेक्शन होने के जो अभी तक एविडेंसेज हैं नेचुरल इन्फेक्शन के बाद चांसेस ऑलमोस्ट न के बराबर हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको 17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, वाइफ कब पॉजिटिव आई आपने ये नहीं बताया है अपने इसमें, अदरवाइज आप फ्री हैं। 17 शायद 28 को हुआ था, सो इट्स 15 डेज, सो 2 more days जी। सो आफ्टर 17 डेज जो करंट गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है आप फ्री हैं। ट्रांसमिट होने के चांसेस कि दूसरों को आप ट्रांसमिट कर दें ऐसा लगभग नहीं है। डॉक्टर राय, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जो आम लोगों की उत्सुकता होती है या आम लोगों के मन में जो सवाल आता है वो ये बहुत ज़्यादा आता है और बहुत पूछा गया सवाल है कि इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है कि कोविड में ये कहा जाता है इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो उसका असर कम होगा या उतना नहीं होगा या संक्रमण से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहेंगे। तो लोगों का ये कहना है कि अगर हम इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वैक्सीन की फिर बहुत ज्यादा क्या जरूरत रह जाती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग ये मतलब भ्रम सा है। आप ये देखिए जो डेथ भी होती है ना, वो स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस जो शरीर के अंदर होता है जिसको साइटोकिन ये कहते हैं, स्टॉर्म जो है उसके कारण से जो है ये होता है। तो वो भी जो एक तरीके का बहुत ही स्ट्रांग इम्यून रिस्पांस है। तो ये कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है उस कोविड-19 का जो वायरस है सार्स कोरोना वायरस 2 उसके अगेंस्ट ये, बट ये नहीं कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग इसलिए मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। एवरीबॉडी जो भी हैं सभी लोग, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या एडल्ट हों, इक्वल रिस्क पे रहते हैं। हाँ, सीवियरिटी का रिस्क अलग अलग हो जाता है। जैसे बच्चों में सबसे कम होता है, एडल्ट में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और एल्डरली में या दोज हु आर विद कोमॉर्बिड कंडीशन रिस्क जो है सीवियरिटी होने की रिस्क जो है ज्यादा है। लेकिन बीमारी होने का खतरा जो है सबको बराबर है। सो एवरीबॉडी इज एट इक्वल रिस्क। ये नहीं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है तो नहीं होगी। इम्यूनिटी जो है इसके अगेंस्ट आपकी नहीं है। इम्यूनिटी देखिए किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ही नया वायरस है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है। आपकी इम्यूनिटी जो है किसी और वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट हुई होगी, उससे प्रोटेक्ट आपका जो इम्यूनिटी है वो कर सकता है। इम्यून सिस्टम एक जेनरिक नहीं होता है, वो किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो इसके डिजीज बिल्कुल ही नया वायरस है, 1 साल पुराना वायरस है, तो इसके अगेंस्ट पूरे इसमें जो जिनको हो गया है उन्हीं को सिर्फ है, या जिनको अभी वैक्सीन लग रही है उन्हीं को इम्यूनिटी है। बाकी लोगों को इस वायरस के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है। जी, डॉक्टर संजय राय and Dr. Prasoon Chatterjee, thank you so much for joining us with your perspective on Dr. Speak. बिल्कुल, तो तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि कोविड से किस तरह से हम सबको बचाया जाए और किस तरह से एक प्रोसेस जो है, एक मजबूत प्रक्रिया जो है इसके खिलाफ चले और ऑथेंटिक प्रक्रिया भी हो। और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि किसी तरह के भ्रम में या किसी तरह की रूमर्स में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रामाणिक न्यूज़ है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसी पर विश्वास करें और उसके लिए DD न्यूज़ लगातार देखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।